Hello students, this is Anupama Lavani and you know I am here for your company law, and today's topic of our discussion is registration and incorporation of a company. So let us start with the steps which you must follow for registering or incorporating your company. There are 4 basic stages which you have to follow while, or you have to observe while getting the registration or you may say the certificate of incorporation for the company. The first one we can classify it into as the first step of incorporation is preliminary steps. Second one is application for registration and delivery of documents. Third one is scrutiny and registration of documents by the registrar, and the last one is issue of certificate of incorporation and CI. So let us start with the first step of incorporation, or you may say the registration of the company. That is the preliminary step. In preliminary step, what you have to do is you have to prepare yourself for registering your company. How you will get prepared for registering your company? Take one simple example. If you want to get ready for going outside, मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं अपने आप को पहले तैयार करती हूँ. किस तरह की तैयारी रहती है कि मुझे क्या पहन के जाना है, मुझे कैसे जाना है, किसके यहाँ पे जाना है, ये मैं पूरा डिसाइड करती हूँ. बराबर है. दैट इज माई प्रीलिमिनरी स्टेप. वैसे ही जब आप एक कंपनी बनाने के लिए जा रहे हो, सो देयर आर सम preliminary steps which must be taken into consideration. What are those? First one is deciding the kind of the company. Deciding the kind of the company means in our previous lecture we saw that there are different types or you may say the kinds of companies. What are those? That means a public company, private company, OPC company, etc. So first you have to decide which type of company you are going to incorporate. If you want to incorporate a public limited company, then you have to see whether it will be a limited company, limited by guarantee company, or a unlimited company. Okay? So first step is deciding the kind of company, and then accordingly you have to prepare your documents. Then deciding the place of the registered office. Deciding the place of the registered office means you have to decide where you are going to register your office. Register your office means where you are going to put your important documents. Okay? The registered office, why it is important? Because all these documents you have to file with the registrar. रजिस्ट्रार जो कंपनी का होता है उसके पास आपको ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है who is my registrar. तो how I will come to know that who is my registrar? By deciding the state. अगर मैं स्टेट डिसाइड करती हूँ तब मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टेट का रजिस्ट्रार कौन है. So the next step after deciding what type of company I am going to incorporate is deciding the place of the registered office. When I decide the place means in which state I am going to register my company, or in which city I am going to register my company. If your city is not confirmed, आपका अगर परमानेंट एड्रेस अभी तक के कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको एक ये मालूम है कि मुझे पर्टिकुलर स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्या है, you have to first decide at least the state in which you are going to register your company. क्यों ये जरूरी है? बिकॉज यही बताता है कि आपके कंपनी का रजिस्ट्रार कौन होगा. देन ऑब्टेनिंग DIN बाय प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स. क्या है DIN? पहले तो कभी सुना नहीं, हमने तो 12th में DIN तो कभी सुना ही नहीं है. तो DIN क्या होता है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. जैसे कि हमारा ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड. आधार कार्ड इज द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. वैसे ही अगर मुझे कंपनी में डायरेक्टर करके काम करने हैं, तो फॉर वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी आई हैव टू फुलफिल सम कंडीशंस. वो कंडीशंस मैं फुलफिल कर रही हूँ, मैंने उसको पूरा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये तभी दूसरी कंपनी जान सकती है व्हेन आई गेट माय DIN. अगर मेरे पास मेरा DIN है
तो वो सिर्फ DIN डालने के बाद ही, अगर आप सर्च कर रहे हो DIN डाल दिए तो पूरी की पूरी उसकी जो बायोग्राफी है ये पर्टिकुलर पर्सन की वो आपके सामने आ जाती है। यानी क्या होता है, उसका क्या है, उसके कितने कंपनी में वो एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है, उसकी कोई बैक खराब हिस्ट्री तो नहीं है। दिस यू ऑल कम टू नो बिकॉज ऑफ दिस DIN। एंड नाउ under Companies Act 2013 it is mandatory for every person who wants to be a director must possess DIN। वैसे ही एक और उन्होंने किया हुआ है कि हमने देखा 2013 में किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है, ऑनलाइन के ऊपर। जब हम लोग कुछ भी ऑनलाइन करना चाहते हैं देन आपकी सिग्नेचर जो है वो कैसी रहती है, मैन्युअल। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं इफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फाइल ऑनलाइन देन यू कैन नॉट पुट योर मैनुअल सिग्नेचर। फॉर पुटिंग योर सिग्नेचर यू मस्ट नीड द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली अथोराइजिंग जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो आपको अलॉट करती है ये सिग्नेचर, और after getting that signature you can put it electronically. So manually putting your signature is not possible through online mode, इसलिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर दी गई है जिसके थ्रू आप आपके सिग्नेचर पुट करोगे और जो भी आपके ऑनलाइन फॉर्म्स रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके ऊपर आपको ये सिग्नेचर पुट करनी है। So who is authorized person to sign on behalf of the company? Obviously the promoters, directors, solicitors, etc. are the persons who file these documents on behalf of the company. So these persons must get their digital signature. Chalo, next point is obtaining DIN, then selecting and reserving name of the company. देखो क्या है, जब मुझे एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो मैं क्या ये कहती हूँ, अरे वो कंपनी, मैं वो कंपनी में काम कर रही हूँ। कंपनी, अरे कंपनी का तो कोई नाम तो होना चाहिए। आइडेंटिटी DIN ये CIN से मिल जाती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक नाम भी तो होना जरूरी है। तो क्या है आपकी आखिरी अगली स्टेज, सिलेक्टिंग एंड रिजर्विंग द नेम ऑफ द कंपनी। पहले क्या होता था, you in your application form provide 10 names for the company। 10 नाम आप प्रोवाइड करते थे एप्लीकेशन फॉर्म में, रजिस्ट्रार को देते थे और उनको बोलते थे कि जो भी आपके पास अवेलेबल नेम होगा वो हमारी कंपनी के लिए अलॉट कर दीजिए। अगर उसके साथ मिलता जुलता कोई नाम भी होगा पहले से जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो रजिस्ट्रार आपको फिर से 3 नाम भेजता था और बोलता था कि यू हैव टू चूज विद इन दिस 3 नेम्स। अगर आपको पसंद नहीं आते थे तो आप फिर से उनके तरफ फिर से कोई अलग नेम्स भेज देते। तो दैट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी क्या दिया है, नाउ बिफोर एक्चुअली फाइलिंग द एप्लीकेशन आपको ये दिया हुआ है कि आपने प्रिलिमिनरी स्टेज में ही आपने अपना एक नाम जो है वो सिलेक्ट करना है और वो रजिस्ट्रार के पास भेजना है और उनको बोलना है कि ये नेम हमारे कंपनी के लिए रिजर्व करके रखो। अगर दैट नेम, दैट मीन्स द कंपनी ऑफ दैट नेम इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, उसी वक्त वो रजिस्ट्रार आपको बता देता है कि आप दूसरा नाम लाइए, उसके लिए हम लोग आपके पास में आपके लिए रिजर्व करके रखते हैं। तो दैट रिजर्विंग द नेम ऑफ द कंपनी, जब आप वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके बाद विद इन 60 डेज यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर कंपनी। ये 60 डेज के लिए आपका जो नेम है वो रजिस्ट्रार रिजर्व करके रखता है। रिजर्व करके रखता है यानी क्या मतलब है कि उसके बाद में भी कोई एप्लीकेशन आती है तो भी उस नाम से कोई और कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है। तो ये कितने दिन के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है, 60 डेज के लिए। अगर 60 डेज के अंदर आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली दिस नेम गेट कैंसल। ये क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। देन ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज मेमोरेंडम, what is the importance of memorandum। memorandum क्या है, बैकबोन ऑफ द कंपनी, यानी जो प्राइमरी जिसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं दैट इज मेमोरेंडम।
आपका स्कोप क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या होगा आपकी कंपनी, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते वक्त प्रमोटर को हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी की भी जरूरत लगे, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन who knows all the rules and regulations and the procedure for incorporation of the company. क्या rules होने चाहिए so that you can get the certificate of incorporation, what is what must be included in your memorandum, what must not be included in your memorandum, that all is known to a company secretary. वैसे अदर एक्सपर्ट्स भी है, जैसे ये है फाइनेंस एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर है, सॉलिसिटर्स है, वो आपको रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर फील्ड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन क्या है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है शेड्यूल 1, कंपनी के शेड्यूल 1 के A to E में बताया गया है। अलग अलग कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा है पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट है, ओपीसी है, बराबर, और उसमें भी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है। तो ये अलग अलग कंपनी के लिए उन्होंने एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, दैट इज A, B, C, D और E। तो what type of company you are going to incorporate, accordingly you have to draft your memorandum, ठीक है। देन ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल्स, ये शेड्यूल ई के बाद में आता है। FGH ये क्या बताता है आपको, प्रोफार्मा देता है, फॉर्मेट देता है, किसके लिए देता है, आर्टिकल्स को बनाने के लिए। तो ये सब कुछ देख के उसी के फॉर्मेट में यू हैव टू प्रिपेयर योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स क्या बताता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन वेटिंग ऑफ ड्राफ्ट्स, क्या है वेटिंग ऑफ ड्राफ्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सब प्रिलिमिनरी स्टेप्स आप क्यों ले लेते हैं, क्योंकि यू कैन इजीली गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले क्या होता था, आपने कुछ कमियां रह गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर से प्रॉपरली फिल हुए नहीं है, तो रजिस्ट्रार आपको बार बार बोलता था ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये भरानी है, वो भरानी है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जब आप रजिस्ट्रार के पास एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन देते हो तो अब ये नहीं होने चाहिए, इश्यूज क्रिएट नहीं होने चाहिए, इसलिए आप पहले क्या करते हो, वेट कर लेते हो कि ड्राफ्ट्स को रजिस्ट्रार से यानी रजिस्ट्रार उसको पहले ही क्या कर देता है, हाँ ये सही है कि नहीं है ये पहले ही बता देता है। तो एक्चुअली जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो ये रह गया, वो रह गया, ये इश्यूज क्रिएट नहीं होते हैं। देन प्रिंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, आपने वेटिंग कर लिया, उसने ओके कर दिया है, तब अभी आप क्या करोगे, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, दैट यू विल गेट प्रिंट। ये जब प्रिंट हो जाएंगे तो ही आप इसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रख सकते हैं और एक आरओसी के पास भी दे सकते हो। और जब आपके शेयर होल्डर्स आते हैं, उन्होंने डिमांड की हार्ड कॉपी के लिए, तो आप उनको भी इशू करवा सकते हो। देन स्टैंपिंग, स्टैंपिंग क्या होती है कि आप ये सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो उसको एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे बनाना जरूरी होता है, स्टैम्प लगाना जरूरी होता है। स्टैंपिंग मीन्स पुटिंग द स्टैम्प ऑन द डॉक्यूमेंट्स। आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक के लिए हमारी स्टैम्प ड्यूटीज रहती है, तो वो प्रॉपरली हमारा स्टैंपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी देखना जरूरी है। और आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसका स्टैंपिंग होना चाहिए, यानी प्रॉपर स्टैम्प उसके ऊपर लगने चाहिए। देन डेटिंग, डेटिंग क्या होती है, आपने किस डेट पे ये सब कुछ क्या किया है, फाइल किया हुआ है, बनाया हुआ है, ये तो डेटिंग कौन सी होनी चाहिए, स्टैंपिंग के बाद की, क्योंकि स्टैंपिंग क्या बताता है कि आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बनाया है, वो उसकी एक आपको परमिशन दी जाती है और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर डेट जो है वो पुट कर सकते हो। देन ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर, कौन होते हैं सब्सक्राइबर, जैसे आप जानते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इफ योर कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी देन मिनिमम 7 numbers of members
आपकी कंपनी में होने चाहिए, एंड दिस मेंबर्स आर कॉल्ड एज सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो द कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट minimum 7 number of subscribers, and if your company is private limited company then you must have at least 2 number of members. Then if your company is OPC, that means one person company, then only one member. तो ये आपके पास सब्सक्राइबर्स जो है उन्हें क्या करनी है, दे हैव टू पुट देयर सिग्नेचर। ये जब अपनी सिग्नेचर पुट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट सिग्नेचर दे हैव टू गिव फुल डिटेल्स। कौन से डिटेल्स देने हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और साथ ही साथ और एक है कि ये जब सब्सक्राइबर साइन अपनी पुट करते हैं तो उसके साथ में एक विटनेस ने भी साइन करनी चाहिए कि हाँ इसने मेरे सामने ये साइन की हुई है। तो जस्ट गेटिंग ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू गेट the signature of witness too along with the signature of your subscriber. Then obtaining consent of the nominee in case of OPC. जैसे OPC means what? OPC means one person company. एक ही पर्सन है जो कंपनी को चला रहा है, एक ही मेंबर है जो कंपनी को चला रहा है। वही मेंबर क्या होता है, डायरेक्टर होता है। इन केस ऑफ हिज डेथ, अगर वो मर जाता है, हमने सोल ट्रेडरशिप में क्या देखा कि जैसे सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेसिटेड टू वर्क हो जाता है, ऑटोमेटिकली दैट सोल ट्रेडरशिप कम्स टू एन एंड। और यही जो हमारा लैक्यूना था सोल ट्रेडरशिप का, उसी को ओवरकम करने के लिए दिस न्यू कंसेप्ट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस। बराबर है, 2013 में क्या किया फिर, ओपीसी, ये न्यू टाइप की कंपनी को हमने लाया हुआ है। जब ये ओपीसी आती है और फिर एक ही मेंबर है वो मर जाता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूड करने के लिए बोला है, जब भी आप ओपीसी फॉर्म करने के लिए जा रहे हो, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द नॉमिनी। नॉमिनी का आपको नाम वहां पे बताना है। अगर ये वन पर्सन जो जिसने कंपनी को इस्टेब्लिश किया, इनकॉर्पोरेट किया है, इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स, ठीक है, उसके साथ कोई हैपन हो जाता है तो उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, वो नॉमिनी। ठीक है, तो नॉमिनी की भी क्या लेनी जरूरी है, कंसेंट लेनी जरूरी है कि वो एज ए नॉमिनी करके वन पर्सन कंपनी में एक्ट करने के लिए तैयार है। हाँ, और ये हम लोग जब डिटेल में ओपीसी देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे नॉमिनी जो है एट एनी टाइम आप बदल भी सकते हैं, या नॉमिनी खुद भी चाहता है कि उसका नेम उससे विड्रॉ करे, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बोथ द पार्टीज कैन चेंज द नॉमिनी। ठीक है, देन ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन एज टू कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या है डिक्लेरेशन, ये लेना बहुत जरूरी है। डिक्लेरेशन किससे लिया जाता है, एक्सपर्ट से। वो क्या डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, दैट मीन्स द लीगल रिक्वायरमेंट्स व्हिच मस्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय द कंपनी, दैट मीन्स प्रोस्पेक्टिव कंपनी, आर फुलफिल्ड। ठीक है, ये देखने के लिए डिक्लेरेशन दिया जाता है एक्सपर्ट से, और वो आपको that is included in a preliminary stage because this must be filed with the registrar for getting the certificate of incorporation. What type of declaration you must have to file with the registrar? That you fulfill all the legal requirements for getting your company incorporated. Then next one is obtaining affidavit from subscribers and persons named as first directors. ठीक है, अब ये क्या है, एफिडेविट क्यों लेना है भैया? एफिडेविट इसलिए लेना है कि दे आर रेडी टू एक्ट एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड इट मस्ट बी गिवन इन फॉर्म INC 9, दैट मींस इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 9। ठीक है, कि ये जो जैसे कि डायरेक्टर्स पहले who appoints the directors in case of public limited company, members or you may say the shareholders appoint the directors। लेकिन ये हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है क्या, नहीं। लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी यू मस्ट हैव 3 डायरेक्टर्स। अभी तो ये 2013 बता रहा है कि ये 3 डायरेक्टर्स में भी एक कौन होनी चाहिए, विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। बराबर है, तो ये जो है इसलिए क्या करना है, उनका एफिडेविट लेना है कि हाँ वो तैयार है टू एक्ट एज अ सब्सक्राइबर्स एंड टू बी नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी।
देन क्या है, ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने कहा पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स है तो वही डायरेक्टर हो सकता है जिसके पास DIN है, दैट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, उनका एड्रेस क्या है, ये पूरा का पूरा उन्हें किसका लेना है, आपको सब्सक्राइबर्स का भी लेना है और डायरेक्टर्स का भी लेना है। जैसे 1 पर्सन कंपनी में है तो उसमें कंपलसरी रहता है कि जो मेंबर है ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन, वो क्या होना चाहिए, उसके पास रेसिडेंस किसका होना चाहिए, इंडिया का। लेकिन ये जो है यहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लेकिन जब हम लोग जैसे हमने देखा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, इफ यू वांट टू नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, देन the residential status of their directors or subscribers is taken into consideration for checking its character। बराबर है, इसलिए आपको क्या लेना है, particulars of subscribers and directors। then क्या है, obtaining consent of the directors। डायरेक्टर्स की फिर से एक अलग से रिटर्न कंसेंट लेनी है एंड दैट यू हैव टू फाइल विद द रजिस्ट्रार दैट दीज पर्संस आर रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन योर कंपनी। Then obtaining approval of the sectoral regulators. Yes, this is the new concept. What is sectoral regulators? Sectoral regulators जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कंपनीज किसे कहा जाता है, रजिस्टर्ड भी कंपनी होती है, अनरजिस्टर्ड भी कंपनीज होती है। लेकिन जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनीज एक्ट अभी 2013 या तो उसके प्रीवियस लॉ के अंडर, उसी को हम लोग किसका स्टेटस देते हैं, कंपनी का। लेकिन बैंकिंग सेक्टर है, उसे हम लोग कंपनी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके सेक्टरल रेगुलेटर्स अलग है। मैंने आपको पहले ही कहा बैंकिंग के कौन है, RBI। जैसे हम लोग फाइनेंस के इसमें स्टॉक वगैरह के जो देखते हैं उसके कौन है, SEBI। तो दिस आर नोन एज सेक्टरल रेगुलेटर्स। जब इनसे रिलेटेड आपको कुछ काम करना है आपकी कंपनी में, इफ यू वांट टू गेट योर शेयर्स लिस्टेड, then from whom you have to take the prior permission, you have to take the prior permission from the SEBI। बराबर है, तो ये भी देखना है कि अगर if you want to list your shares, have you taken the approval from the sectoral regulators or not। अगर आपने नहीं लिया है फिर भी लिस्टेड कंपनी के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा। क्यों रिजेक्ट करेगा, क्योंकि आपने अप्रूवल लिया हुआ नहीं है सेक्टरल रेगुलेटर्स। देन ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसे क्या कहा जाता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल ये तो लेना जरूरी है, क्योंकि आपके पास कितनी लैंड है, आपका कैपिटल क्या रहेगा, आप क्या करने वाले हो, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, ये भी तो बताना आपको जरूरी होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका भी आपको ड्राफ्ट जो है वो करना ही पड़ेगा। So this is all the preliminary steps which must be taken by the promoter to get the certificate of incorporation. In our next lecture, we will discuss the second step, that is application for registration and delivery of documents. Okay, thank you.